Hi everyone, I'm Swapnali Jambi. Welcome to the live session. And today's topic is Q&A of fitness and how to be consistent. So we will be discussing this in like a very short 15 minutes video. So I hope everyone will join and then I'll start. So today is my birthday, by the way. So what I thought this is the right time to start my social media properly because today, like from today, I am taking a very big leap of faith, and then I am redesigning my all profiles and then getting more valuable content on my page. So I hope everyone will support me. Thank you so much. So I've got ready today. रोज वर्कआउटच्या क्लोथ्समध्ये असते, सो आय थॉट की वाय नॉट आज थोडासा अच्छे से तयार होके आए. And yeah, thank you so much everyone. Unfortunately, I will not be able to join anyone in this video, so kindly do not send the request. Okay, नहीं भाई नहीं ऐड कर सकते. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, dear. Yeah. Hi everyone. So today's topic is Q&A, like question and answers of fitness and how to be consistent. Last week I had put up a story ki are you being consistent with your workouts? Are you struggling? What are the issues? You can ask me, and a lot of people have messaged me. So I thought instead of typing all those things, I'll just shortly go live and on the occasion of my birthday and then answer the questions. There are a lot of people who are in fitness background in my profile. If you are also want to contribute in this, please, you're welcome. And if those who are watching and you want to ask any questions related to that, please comment in this and I will make sure that the next live I will take these questions as well. Yeah, okay. Chalo, let's start. So, officially introducing myself, I am Swapnali Jambe and I am a fitness professional and a nutrition advisor, and I am in this field since from 2012. But during the lockdown, I got properly into the fitness and nutrition, and then this is my whole career now. So, I hope I will be able to provide good values to everyone. And thank you so much for joining for today's live and giving me your precious 15 minutes of your life. Thank you. So the first question I got for regarding the consistency of in fitness. So like I'll be taking around like 5 to 10 questions today. Is how to conquer laziness. Like that was the first question we had. So बहुत simple question है. कि लेजीनेस हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि वर्कआउट करेंगे, सुनते रहते हैं, मीन्स कि कोई भी बताता है हाँ थोड़ा वर्कआउट कर ले और थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा या फिर न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, बट लेजीनेस बहुत हमेशा होता है कि नहीं बोर हो रहा है, कौन करेगा 1 घंटा निकाल के. सो लेजीनेस कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को अगर करने से आपको बोर हो रहा है तो आप वो करिए ही मत. ठीक है, फर्स्ट थिंग ये कि लेजीनेस क्यों फील हो रहा है. अगर आपको वर्कआउट करना पसंद नहीं है, आपको जिम जाना पसंद नहीं है, तो डोंट गो फॉर इट. आप सिंपल वॉक कीजिए वहां पे जाके. ठीक है, जो आपको जिसमें पसंद आए. ठीक है, इफ यू फील कि नहीं मुझे टायरिंग वर्कआउट्स नहीं पसंद है, गो फॉर अ वेरी डांस फिटनेस क्लास, नाइस एंड जिसकी वजह से आपको अच्छा भी लगे और एक क्या बोलते हैं एनर्जी आपकी बॉडी में आए. तो लेजीनेस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं हो सकता है. एंड यू हैव टू बिल्ड स्मॉल हैबिट्स टू ओवरकम दैट. एक दिन में नहीं जाएगा कि हाँ कल से मैं स्टार्ट करूंगा, मंडे से जाऊंगा, न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा और फिर मेरी लेजीनेस हटेगी. ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हें बाहर निकाल के नहीं करवा सकता. So you have to build small habits कि okay, so today I will start with suppose drinking water. So आज मैं 1 गिलास पानी ज़्यादा पीऊँगी. तो this can be the basic start. Okay, then otherwise if you're sitting constantly, you're working and then sitting all the time, you'll just say okay, आज मैं 4 घंटे बैठे हूँ, उससे अच्छा मैं बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेके I'll walk around and then sit. I think this makes your laziness थोड़ा हटता है, and like it's very psychological, so you have to overcome that way. It's I think very easy answer. Next question we will take. So I hope this helped.
You can also start putting the questions here. So one of my friends, she messaged how to prioritize fitness in daily routine. My routine is so hectic for anything else. So this is a very common problem with people, especially after lockdown. I've seen कि work from home culture की वजह से तो continuously we are working and then daily routine इतना hectic है, काम की वजह से भी नहीं होता है. और इफ़ यू आर होम मेकर तो दिन भर घर के काम है, बच्चे, एंड एवरी सिंगल थिंग इज देयर. सो अलग से 1 आवर निकाल के वर्कआउट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड फिटनेस प्रायोरिटाइज नहीं होती है ऐसे लोगों से. सो व्हाट कैन बी डन इन दिस इज फिटनेस. जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अचानक से आप सोचोगे कि आज से मैं नहीं कि पूरा 1 घंटा पूरा डेडिकेट करूंगा काम वाम छोड़ के, तो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो आपको इसमें हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी कि अगर आप काम कंटिन्यू करते हो, थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा है, बट हम लोग मोबाइल देखते हैं. लेकिन इफ़ यू ऑब्जर्व योर सेल्फ, यू आर वॉचिंग द रील्स ऑल द टाइम, स्क्रोलिंग अराउंड, यूट्यूब है, रील्स देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं, जस्ट वी आर ऑन व्हाट्सएप जस्ट वेटिंग फॉर सम रैंडम मैसेज टू कम एंड देन जस्ट स्टार्ट चैटिंग. इट्स बेटर कि एक 10 मिनट निकालो, ऑब्जर्व करो. वी ऑल हैव टाइम. थोड़ा सा यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है. टेक आउट दैट 10 मिनट एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. 10 मिनट से कुछ नहीं, वॉक कर लिया, थोड़ा सा आपने जंपिंग कर लिया, कुछ नहीं तो 2 सॉन्ग्स लगा के फटाफट डांस कर लिया. सो दिस वे यू विल स्टार्ट एडिंग सम फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ. So once you start getting that kick, okay, this works for me, okay, then you start adding small 10 minutes. जिससे अब पूरे दिन भर में नहीं होता है एक घंटा, तो आप मॉर्निंग 10 minutes, इवनिंग 10 minutes ऐसे निकालिए. इफ यू आर सिटिंग ऑल द टाइम, स्टार्ट एडिंग 5 minutes स्ट्रेचेस इन योर रूटीन. सो दिस वे आपका धीरे धीरे डेली रूटीन में ये आएगा. और प्रायोरिटी आपको जब रखनी है फिटनेस का, जब आप कोई फिटनेस मतलब चाहिए कि हाँ बॉडी को फिटनेस पर क्यों चाहिए. किसी का गोल होता है पतला होना है, किसी का होता है कि नहीं मुझे बॉडी बनानी, मसल बनाने. तो जब आप बड़े बड़े गोल रखते हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रायोरिटाइज करना. जैसे न्यू ईयर के टाइम 1 तारीख के रेजोल्यूशन के नाम पे बहुत लोगों ने ये लिया रेजोल्यूशन कि मैं 10 किलो कम करके रहूँगा ये साल में, या मैं 6 पैक्स निकालूंगा, बट होता नहीं है ऐसे. सो ऐसे बड़े गोल्स मत रखो. फिर तो वाई यू वॉन्ट दिस टू हैपन इन योर टू योर बॉडी, वो याद रखना चाहिए. सपोज यू वॉन्ट टू लूज वेट, so why it is important for you. If you are having a lot of fat in your body, what are the problems that can happen to your body, वो आपको देखना है कि अच्छा ज़्यादा फैट की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, बीमारियां हो रही है, अभी नहीं है बट आगे आने वाली है. दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, सो मच स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा सिटिंग से अगर आपका बैक पेन होता जा रहा है, आप काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो एंड बैक पेन हो रहा है कंटिन्यूसली, बहुत मुश्किल है. ठीक है, सर्वाइकल पेन इज वेरी कॉमन नाउ डेज. बहुत लोगों का देखा सिर्फ मोबाइल होल्ड करने से दिस पार्ट ये भी दर्द होना शुरू होता है. आई हैव सीन पीपल हैविंग अ वेरी वीक दिस एरिया. सो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. सो यू हैव टू नो वाई फिटनेस आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए यहाँ पे. तो आपका जब आपको वाई पता चलेगा कि मैं हमेशा बताती हूँ जो भी लेडीज मेरे पास आती है जिनके छोटे बच्चे हैं, वाई यू हैव टू बी फिट. अगर या फिर जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको बोलती कि यार आपके बच्चे के साथ आप 10 मिनट बिना थके खेलना चाहते हो, वहां से शुरुआत करो कि ओके मुझे थकना नहीं है. मैं दिन भर का काम करके जब आपके बेबी के साथ आप खेलते हो तो आपको थकान नहीं महसूस होनी चाहिए. यू शुड फील वेरी एनर्जेटिक, स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके पीछे भागना दौड़ना. तो यहाँ से शुरुआत करो. दिस विल हेल्प यू टू हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि यार मुझे इस वजह से तो फिटनेस स्टार्ट करना. देन स्लोली यू विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग दैट. ठीक है, हम लोग कमा लेते हैं, खाना बना लेते हैं, सब कुछ हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, फैमिली, सोशल लाइफ. फिटनेस कब याद आती है हमें, जब हमें डॉक्टर लिख के देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है ना, आप थोड़ा वजन कम कीजिए, या फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी तो आपका ये पेन कम होगा, या खाने पे ध्यान देना पड़ेगा. तो आगे का जब प्रॉब्लम आना शुरू होता है तब वी स्टार्ट प्रायोरिटाइज. सो डोंट डू दैट. डोंट गेट टू दैट लेवल कि जब प्रॉब्लम आ जाए और फिर तुम शुरू करो. सो आई वुड से ये ध्यान रखना है हमेशा कि हमें दूर रहना है इन सब चीज़ों से. तो तैयारी पहले करनी पड़ेगी. एक दिन में कुछ होगा नहीं. और सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन से जो किक मिल रही है आपको कि मतलब जो होता है ना एक 15 दिन का जो क्रेज रहता है कि यस अब तो मैं मतलब करूंगा, और फिर 15 दिन बाद वो जोश चला जाता है. तो दिस विल नेवर हेल्प यू. सो आई थिंक यू हैव टू लिस्ट आउट फ्यू थिंग्स कि व्हाई बीइंग फिट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली. एंड इफ यू आर आई थिंक इफ यू आर हैव डिपेंडेंस ऑन योर इन योर फैमिली, जो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उनके लिए
रखिए आपकी हेल्थ अच्छी। अगर आप बीमार हो रहे हो उसकी वजह से आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही है, सो उनका भी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स बेटर दैट यू टेक केयर एंड योर फैमिली विल बी उनको उतना ट्रस्ट रहेगा कि हाँ इनकी तबीयत खराब नहीं होने वाली है, अदरवाइज बहुत इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डज हैविंग अ फिटनेस बडी और पार्टनर हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम फूडी फ्रेंड्स ढूंढ लेते हैं, हम लोग सोशल फ्रेंड्स ढूंढ लेते हैं, सैटरडे नाइट बाहर घूमने के लिए फ्रेंड्स रहते हैं हमारे पास में, या फिर आपको टीवी देखने के लिए, मूवी के लिए सब फ्रेंड्स मिल जाते हैं, या फिर आपके घर में ही सपोज अ कपल इज देयर, ठीक है, तो आप लोग ही ये ऐसे एक पार्टनर बना सकते हो कि 1 घंटा हमने निकालना है, वर्कआउट करना है, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, अगर अकेले नहीं होता है, बोर होता है, लेजी है, एक जन तो ऐसा चाहिए कि चल यार हम लोग जाके कुछ वर्कआउट कर लेते हैं, so this will always help you. I take online classes and what happens, सबसे मैं बात करती हूँ, everyone knows how to do the exercises, every single person हो, कहीं ना कहीं सब लोगों ने जिम किया है पहले, या फिर they have joined other classes also, but why they come still for the online classes though they can do their own workout, but आते क्यों? I have always asked them, they said कि यार अकेले नहीं होता है हमारे से वर्कआउट, they want somebody to push them, या फिर जो ग्रुप रहता है, ग्रुप जितना है उनके साथ में वर्कआउट जब करते हैं तो दे हैव बीन बीन वेरी रेगुलर अबाउट इट, एंड आई हैव सीन नो ड्रॉप आउट्स इन द क्लास, दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंसी जो साथ में वर्कआउट करने से ही, तो एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्स। सो ये नहीं है कि वर्कआउट मतलब जैसे मैं इस फील्ड से हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे से अकेले से भी वर्कआउट बहुत मुश्किल हो जाता है, सो आई प्रेफर टू वर्कआउट विथ माई स्टूडेंट्स, तो कि उनके साथ में वो भी मोटिवेटेड रहे, मुझे भी थोड़ा पुश मिले कि मैंने अपना गोल अचीव करना है। सो यू शुड डेफिनेटली कन्विंस योर फ्रेंड और योर पार्टनर टू यो कि चलो यार साथ में वर्कआउट शुरू करते हैं, नॉट जस्ट जिमिंग कुछ भी, बट एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, या फिर आप अगर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अकेले का डाइट कर रहे हो और घर वाला कोई साथ नहीं दे रहे, तो ऐसा हो जाता है ना कि अच्छा अकेला डाइट कर रहा है तो सब लोग उसको साइड में करना शुरू कर देते हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज लाइक घर में किसी को पटाओ कि यार दोनों मिलकर डाइट करेंगे, एंड देन यू सी द चेंज हैपनिंग इन दैट इन योर रिजल्ट्स। या तो फिर कोई फ्रेंड पकड़ो, उसको बोलो साथ में ही हमारा न्यूट्रिशन रहेगा, अकाउंटेबिलिटी जो बोलते हैं वो बहुत बढ़ती है, ठीक है। विद दिस इफ यू हैव अ वर्कआउट पार्टनर रेडी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवेयर, बट हैव अ पार्टनर फॉर दैट, ज्वाइन ग्रुप्स जहाँ पे कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ग्रुप्स होते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। आपका रोज आप डेली पोस्ट कर सकते हो कि अच्छा मैंने ये वर्कआउट कंप्लीट किया है, या फिर आई वॉक फॉर 10 minutes टुडे, दैट्स अ बिग अचीवमेंट इफ यू आर अ बिगिनर, आप वो डालिए, दिस विल ऑलवेज हेल्प यू टू बी ऑन ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, so I feel guilty when I miss out on my workouts due to professional commitments. How to overcome that? Very serious questions. बहुत मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, ठीक है, कि काम बहुत हो गया, उस दिन वर्कआउट मिस हो जाता है, एंड देन आई फील कि ओह शिट मेरा वर्कआउट मिस हो गया, एंड आई फील रियली गिल्टी अबाउट इट। सो व्हाट टू डू व्हेन दिस हैपन्स? सो दिस इज अबाउट माइंडसेट, कि मैंने बहुत एक चेंज किया कि मुझे समझ गया कि ओके मेरे सपोज मंडेज आर वेरी बिजी, तो मुझे पता है उस दिन मेरा वर्कआउट मिस होना है, सो मैंने वो मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट करना है ये मैंने छोड़ दिया। आई स्टार्टेड डूइंग ट्यूसडे टू सैटरडे, ये फर्स्ट शिफ्ट मैंने मेरा खुद के लिए चेंज किया, क्योंकि सैटरडे संडे पूरा वीकेंड है तो छुट्टी मारनी है ऐसा नहीं है। सो आई शिफ्टेड माई वर्कआउट्स टू ट्यूसडे टू सैटरडे, जिसमें आई प्रायोरिटाइज की मेजर मसल ग्रुप्स मेरे पूरे वर्क हो जाए, तो एक आध दिन छुट्टी भी हो गई, दैट आई कैन कवर ऑन द वीकेंड, सो दैट ऑलवेज हेल्प्स। छोटा सा शिफ्ट था, बट इट ड्रास्टिकली चेंज द वे आई वॉज फीलिंग कि अच्छा मेरा वर्कआउट मिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें मुझे काफ़ी चेंज हुआ। अदरवाइज व्हाट हैपन, सपोज आई एम ट्रैवलिंग, मेरे साथ बहुत बार होता है आई एम ट्रैवलिंग एंड फिर वर्कआउट नहीं होता, खाने पीने में भी ध्यान कभी कभी नहीं होता है। व्हाट आई डू इज ओके वर्कआउट मिस हो गया, कोई बात नहीं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन डू इज जस्ट वॉक, ओके, जहाँ वॉक तो कहीं पे भी कर सकते हो आप, ठीक है, एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड कहाँ पे भी हो कर सकते हो, होटल रूम में अगर हो तो आप वॉक कर ही सकते हो कहीं पे भी। सो इवन सो आई हैव अ ह्यूज हैबिट, कोई भी फोन कॉल आए जब मेरा वर्कआउट मिस होता है, आई मेक श्योर वाइल टॉकिंग ऑन द कॉल आई वॉक अराउंड, सो वो बहुत एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सो यू विल नॉट फील गिल्टी अबाउट इट, ठीक है, कि अच्छा मिस हो गया तो चलता है, उसकी जगह कुछ कर लिया, बट समटाइम्स ऐसे हुआ कि बीमार थे या फिर बहुत काम करना पड़ा तो आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नेवर फील लाइक दैट, वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सब अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में होते हैं,
एंड कंसिस्टेंसी इज नॉट लाइक डेली वो चेक होना चाहिए कि ओके वर्कआउट किया, ओके राइट, नहीं हो सकता है, समटाइम्स इट हैपेंस कि नहीं होगा, इट्स ओके, ठीक है, जब आपको टाइम मिलेगा तब यू रीस्टार्ट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज वर्कआउट मिस हो गया, फिर कल मिस हो गया, फिर परसों मिस हो गया, ऐसे करते एक हफ्ते हो गया, उसके बाद एक महीना हो गया। सो दिस वे वी स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स की मतलब बहुत सारे यू मस्ट हैव सीन कि जिम लगाते हैं लोग, क्लासेस लगाते हैं, थोड़े दिन जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बोलते क्यों नहीं, घर में शादी थी, 3 महीना छुट्टी हो गई और फिर आए ही नहीं। तो ऐसे भी बहुत होता है। सो अगर छुट्टी हो गई है तो थोड़े दिन कुछ बैलेंस आउट करने के लिए छोटा वर्कआउट कीजिए, सिंपल वाला, अगर हो पा रहा है तो। अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, 2-3 दिन मिस हो गया, 4th day you get back on the track. That's the thing which will keep you going for a long time for the physical fitness and as well as nutrition. Same thing goes with the cheat meals की चलो आज पार्टी कर ली है तो फिर अगर मेरा डाइट खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं। इफ यू डिड अ पार्टी, इफ यू हैड अ पार्टी एट ऑफिस सपोज एंड यू हैड टू ईट, वर्कआउट तो हुआ नहीं प्लस खा भी लिया बाहर का, तो गिल्ट होगा, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल, फील दैट गिल्ट, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट डे यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट फॉलोइंग द रेगुलर हेल्दी रूटीन वट एवर यू हैव। पार्टी अगर होता है तो यू अंडरस्टैंड कि सैटरडे संडे बहुत खाना हो रहा है, तो पूरे हफ्ते में आप बैलेंस्ड मील रखिए कि उतना वहाँ पर जंक खाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर बाहर आपको सैटरडे संडे हो रहा है। सो यू हैव टू फिगर दैट आउट। तो गिल्ट जब निकालोगे कब निकलेगा, जब माइंडसेट चेंज होगा एंड यू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हेन यू आर मिसिंग दोज सेशंस। So try this will really help you. And my strategy, as I told, Tuesday to Saturday वर्कआउट करो, अगर मंडे खराब होता है तो वैसे, ठीक है। संडे भी वर्कआउट कर सकते हैं, बाय द वे देयर इज नो रूल कि संडे वर्कआउट नहीं करना है। आई सीन सो मेनी जिम्स संडे को बंद होते हैं, सो और लोग भी वर्कआउट नहीं करते क्योंकि उस दिन और कोई आता नहीं ऐसे, बट व्हाई नॉट, नहीं होता है, गो फॉर सैटरडे संडे वर्कआउट्स विच शुड बी द अल्टीमेट वर्कआउट्स पूरे वीक के। आप वहाँ पे भी बहुत खुद में चेंजेस देखोगे। देन हाँ, दिस इज नाइस क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम दिस, जो बहुत सारे बार बोलते हैं ना कि वर्कआउट में बोर हो रहा है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमें, मतलब मैं क्लाइंट जब बोलते हैं कि बोर हो रहा है तो व्हाट कैन बी डन, हाउ टू कीप वर्कआउट्स इंटरेस्टिंग। आई यूजुअली गो टू जिम, देयर वाज अ गैप ऑफ अ वीक एंड नाउ I don't feel like going again, like the same thing I told. So how to keep workouts interesting? अगर वेट ट्रेनिंग में बोलूँ, बोरिंग वर्कआउट्स आर द बेस्ट वर्कआउट्स, ठीक है। तो हमें इंस्टाग्राम पे देखने की आदत लग गई है सब, पीपल आर डूइंग फैंसी वर्कआउट, फैंसी एप्स एंड देन सम फैंसी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, कुछ भी चलता रहता है, बट देन हमें लगता है अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देन वी ट्राई दिस, बट रिजल्ट्स बोरिंग वर्कआउट से ही आते हैं फर्स्ट, अगर वेट ट्रेनिंग की बात करें। बट यू कैन ऑलवेज कीप दैट इंटरेस्टिंग कि सपोज वही मसल के लिए आप दूसरा वर्कआउट ट्राई कीजिए, ये हफ्ते किया, अगली बार दूसरा कुछ ट्राई करके देखिए, इंटरेस्टिंग रखने के लिए। अदरवाइज यू कैन स्विच द फॉर्म्स इन बिटवीन कि अच्छा मैं 15 दिन में एक बार ओके ट्राई डांस फिटनेस, ऑल्सो ट्राई योगा। आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट कि योगा करो। सो कभी अगर वर्कआउट ठीक है बोर हो रहा है, गो फॉर जस्ट सूर्य नमस्कार, लाइक फुल ऑन 108 सूर्य नमस्कार तक आप कर सकते हो। सो थोड़ा ना बॉडी के लिए आपको चैलेंजिंग भी हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो फील कि ओके आई डिड समथिंग डिफरेंट टुडे। एंड आई सीन लाइक ह्यूज रनर्स कम्युनिटी, अगर आप इफ़ यू लव रनिंग ऑन द रोड्स, एक दिन कुछ वर्कआउट मत करो, अच्छा वार्म अप करो, गो फॉर रन आउटसाइड, अच्छी हवा लगेगी, अच्छा अगर आपके यहाँ पे स्पेस है, यू हैव अ जॉगिंग ट्रैक, जस्ट गो फॉर इट, दैट विल डेफिनेटली पूरा चेंज हो जाता है उसके अंदर। सो इफ़ यू आर इनटू दैट, ट्राई दैट। या तो फिर आप एक दिन किसी और का क्लास अटेंड कीजिए, इफ़ यू आर लाइक अटेंडिंग ग्रुप सेशंस, किसी और के क्लास में जाके देखिए, पीपल ऑलवेज वेलकम यू इफ यू गो टू सच क्लासेस, ट्राई दैट। इवन एज आई टेक माई ओन क्लासेस, when I get bored of taking the same sessions every day, like I take it like 4 times a day, same thing, मुझे ऐसा लगता है I go to a different instructor's class for my own workout. So you can always leave that thing aside and जा सकते हो. So this will always help you to be keep your workout interesting. कभी बोर नहीं होगा, and that's fine. You can always switch the forms in between. So that's fun to do. And जो इसमें एक पॉइंट था कि there was a gap of a week and I don't feel like going. ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा होगा, बट ड्रैग योर सेल्फ थोड़े दिन के लिए, कोई बात नहीं। अगर डायरेक्टली जिम नहीं जाना हो पा रहा है बिकॉज थोड़ा बोर हो रहा है, तो इससे घर के अंदर सी आई हैव अ होम सेटअप वेयर आई वर्कआउट। आई डोंट गो टू जिम राइट नाउ, बट आई हैव अ ओन सेटअप जहाँ पे मैंने मैट लगाया है, थोड़े से वेट्स रखे हैं। अगर जिम नहीं जा पाते हैं, अगर नहीं हो रहा है
15 मिनट वर्कआउट घर पे कीजिए, बाय सम डम्बल्स, बहुत सस्ते मिलते हैं अभी आजकल तो, बहुत इजीली अवेलेबल है, या सेकेंड हैंड लीजिए डम्बल्स, एंड देन हैव इट। जब भी आप कभी जिम नहीं जा रहे हो या नहीं टाइम मिल रहा है, 10-15 मिनट्स स्टार्ट योर वेट ट्रेनिंग, डू 2-3 सॉन्ग्स फॉर डांसिंग, बस यूर सेट। तो यहाँ से शुरू कीजिए, डेफिनेटली थोड़े दिनों बाद आपका वो चेंज हो जाएगा कि अच्छा मुझे वापस से ट्रैक पे पहुँचना है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, कि ये नहीं किया तो मुझे ये करने मिलेगा, सो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। सो डोंट मिस योर वर्कआउट्स प्लीज। थोड़े ही क्वेश्चंस रहे। नेक्स्ट इज earlier I thought that setting a goal will keep me motivated, but I think that's not working. Okay, so setting a goal, see, motivation is a different thing. Motivation ये होता है ना कि हाँ 2024 आ रहा है, 1 तारीख आ रही है, फिटनेस रेजोल्यूशन ले लिया हम लोगों ने कि मैं 10 किलो लूज करने वाला हूँ या वाली हूँ, एंड 15 जनवरी तक पूरा डाउन हो गया, दैट इज मोटिवेशन। इट्स लाइक वेरी टेम्पररी, मोटिवेशन विल नॉट कीप यू गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि दैट्स वन ऑफ माई कोट्स आई ऑलवेज यूज, लाइक यू नो, मोटिवेशन से आपको दूर तक नहीं लेके जाएगा रिजल्ट्स लाने के लिए। आपको 15 दिन बहुत अच्छा लगेगा, एंड व्हेन द मोटिवेशन फिजल्स आउट, आपके लिए कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करेगी। इवन इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, जैसे भी बताया, कुछ तो वर्कआउट करो। नहीं आपको करना है वेट ट्रेनिंग, कोई बात नहीं, आपको नहीं कोई क्लास जाना है, कोई बात नहीं, घर पे ही कुछ करो जिसकी वजह से आप थोड़ा मूव कर पाओ, ठीक है। 2-3 सॉन्ग्स लगाओ, डांस कीजिए, एंड देन यू आर सेट। अदरवाइज जस्ट गो आउट एंड प्ले विद द किड्स, वो बहुत भगाते हैं, उनके पीछे भागो, बस उतना ही सेट है, ठीक है। एक दिन आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मोटिवेशन वहाँ पे, ठीक है। गोल सेट करो, और गोल ऐसा मत करो कि मैं अच्छा मैंने गोल सेट किया है कि मैंने 10 किलो कम करना है 1 महीने में, अब उसके पीछे फिर तो कंसिस्टेंसी तुमको देनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है। सो हैव स्मॉलर गोल्स कि ओके माई गोल विल बी ऑफ दिस वीक टू मूव मोर, लाइक मैं सिर्फ दिन में 5-10 मिनट ही खड़ा रह के काम करता हूँ या फिर मूव करता हूँ। दिस वीक माई गोल विल बी, चल मैं और 20 मिनट्स ट्राई करूँगा टू कीप माई बॉडी एक्टिव। या सपोज इफ़ यू वांट टू ड्रिंक मोर वाटर, अभी आप सिर्फ 1 लीटर पी रहे हो दिन में, बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज दैट कि अच्छा दिस वीक्स टारगेट विल बी आई विल बी ड्रिंकिंग एटलीस्ट 1 का मैं 2 लीटर भी आ जाऊँगा। तो छोटे छोटे आप जब गोल्स डिवाइड करते हो, मोटिवेशन तो ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि अच्छा नया कुछ तो गोल है छोटा छोटा अचीव करने के लिए, एंड देन आपको रिलाई नहीं करना पड़ेगा एक्सटर्नल मोटिवेशंस पे कि अच्छा नहीं यार 10 करना है, ऐसे नहीं। छोटे छोटे गोल्स हमेशा अचीवेबल होते हैं आपके, सो वो रखना है, एंड मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करना है। बोरिंग होता है कभी कभी, आई नो, बट यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ, अदरवाइज लाइक आई सेड फाइंड अ वर्कआउट पार्टनर, मतलब उसकी वजह से रिजल्ट आने ही आने आपको, ठीक है। आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो गोल आप ऐसे सेट करो विच कैन बी अचीव्ड स्मार्टली, लाइक SMART से, सो इट शुड बी लाइक यू नो स्पेसिफिक गोल्स होना ही चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल्स आपने रखे हैं तो उसको छोटे छोटे वीक्स में डिवाइड कीजिए कि ये वीक में ये होगा, ये अगले वीक में ये होगा, उसके बाद ये होगा। सो दिस वे आपको ना वो लॉन्ग टर्म के गोल के लिए शॉर्ट स्टेप्स जो चाहिए वो मिलेंगे, और टू अचीव दैट स्टेप एवरी टाइम वो आपको 1 वीक पूरा मतलब फुली मोटिवेटेड रहेगा। फिर एक दिन आप आराम कीजिए चाहिए तो, एंड देन यू अगेन रीस्टार्ट, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प। एंड ट्राई दिस एंड देन लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू। नेक्स्ट, अच्छा, सो दोज हू मैसेजिंग मी, हाँ प्लीज हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, इट्स माई बर्थडे, आई एम सो हैप्पी टुडे। Okay, so I have just one last question now. Okay, so like I feel tired constantly due to daily routines and workouts, daily routines and the work. Okay, so उसके बाद कैसे वर्कआउट करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काम का स्ट्रेस इतना है, एंड उसके वजह से होता ही है कि वर्कआउट की एनर्जी नहीं बचती है। अगर जैसे इफ सपोज लेडी इज देयर हु इज हैंडलिंग हर हाउस एज वेल एज द वर्क, खाना भी बनाना है, बच्चे भी मतलब ध्यान देना है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ लेडी, दैट्स वाई। सो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि काम से ऑफिस से भी आ रहे हैं एंड देन घर का भी पूरा करना है। सो व्हाट आई से कि वर्कआउट अगर, क्योंकि 1 घंटा निकालना ऐसे इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दीज सच अगर आपका सिनेरियो है तो क्या करोगे आप, वर्कआउट थोड़ा सा कम टाइम निकालो, ज़रूरी नहीं 1 घंटा निकालना है,
15 to 20 मिनट स्मार्ट वर्कआउट कीजिए, जिसमें आपको फटाफट सारे उस दिन का, हाँ ये मसल ग्रुप मैंने कंप्लीट किया, या फिर ये मैंने चलो आज मुझे कार्डियो करना था, या फिर मुझे HIIT करना था। आप ऐसे एक्सरसाइजेस प्रायोरिटाइज कीजिए छोटा शॉर्ट स्पैन के लिए एंड स्मार्ट वर्कआउट्स कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपका सेकेंड पार्ट आता है खाना, ठीक है। अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट बट यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड देन पूरा काम एंड फिर भी कुछ हो ही नहीं पा रहा है, सो आप खाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो ट्राई कि वट एवर यू आर कुकिंग और यू हैव दैट फूड इन योर प्लेट, इट शुड बी अ बैलेंस्ड मील, आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली वो बना हो। बहुत लोगों का होता है कि अच्छा मेरे लिए अलग से बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं थकी हूँ इतना सारा, उसके बाद भी मैं अलग से खाना बनाऊँ, ये नहीं होता है। बट क्या करिए, अलग कुछ नहीं बनाना है, जो आप रेगुलर खाते हो सबको खिलाइए, तभी होगा। और कोई ब्लैंड खाना कोई खाना नहीं होता डाइट में कि अच्छा बिना नमक का और उबला हुआ खाना कोई खाता नहीं है। दे आर जस्ट टेस्टी गुड रेसिपीज आउट देयर, आप वो बनाइए, ठीक है। प्रोटीन प्रायोरिटाइज कीजिए, अगर आप बहुत थकते हो प्रोटीन लगेगा आपकी बॉडी के लिए एनीवेज टू रिकवर फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। आप प्रोटीन प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके अराउंड आप खाना बनाइए और सबको खिलाओ, सबको अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खिलाओ या फिर बनवा के ले लो, बट ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। दिस वे आपको जो टायरिंग जो हो रहा है बहुत चीज़ खाने की वजह से थोड़ा सा बेटर फील करेंगी, थोड़ा रिजल्ट वहाँ से आएगा ही आपको। न्यूट्रिशन से तो मतलब बहुत रिजल्ट जल्दी मिलता है। एंड वर्कआउट जब आप करेगी तो आपको जो बाकी के जो फायदे मिलने हैं बॉडी के लिए फिटनेस के रिलेटेड वहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपको खुद पे ध्यान देना। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लाइफ के कि यू शुड नो योर वाई, इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू हैव किड्स, इफ़ यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। सो हमेशा बोलती हूँ कि योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू। तुम अगर बीमार हो गए तो उनका सबका स्केड्यूल खराब हो जाता है। अगर छोटे छोटे बेबीज है तो क्या करोगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर फिटनेस फॉर देम एज वेल। सो आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब हेल्दी एंड हैप्पी रहने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। दीज आर लिटिल सैक्रिफाइसेस ऑल्सो आई कैन से, बट फॉर फीमेल स्पेशली आपको यहाँ पे खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप हेल्दी रहोगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, और आप घर में आपकी चलती है बाय द वे, तो तुम जो खाना बनाओगे घर पे वही खाएंगे। सो तुम अच्छा बनाओ, हेल्दी बनाओ, सब लोग खाएंगे। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट वंस यू स्टार्ट कुकिंग दीज आइटम्स उनको रेगुलर नहीं होगा, धीरे धीरे। और आई हैव सीन दैट इन माई ओन फैमिली ऑल्सो। तो पहले हम लोग बहुत फास्ट फूड और इसमें रहते थे, बट लाइक सो एट अ वेरी मतलब 15 दिन में एक बार भी नहीं होता है अब इस लेवल पे आके कि अच्छा आज हमारा चीट डे अगर है, सपोज माई बर्थडे आज हमारा चीट डे बाय द वे, तो बहुत 1-3 महीने बाद इन सब लोगों ने मतलब मिलकर डिसाइड किया कि ओके बाहर जाके खाना खाएंगे, काइंड ऑफ दैट। सो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें अगर घर में भी आप चेंज करते हो, सो योर फैमिली ऑल्सो अडेप्ट टू दैट। सो डोंट थिंक कि अच्छा मेरे घर में इसको ये ऐसा खाना पसंद नहीं, उसको ऊपर से अलग से चाहिए कुछ तो जो फास्ट फूड चाहिए, या फिर सपोज एक्स्ट्रा आपके घर में अगर बहुत ऑयली बनता है, किसी किसी घर में जिसे बहुत कम खाते हो, किसी में बहुत हर रोटी पे अलग से घी जाता है, और जिसकी वजह से वेट बहुत सबका बढ़ा हुआ है एंड कि अच्छा नहीं लगता है ऐसा खाना। सो समटाइम्स लाइक हाँ टेस्ट के लिए खा रहे हैं ऐसे हो जाता है, बट इफ़ योर हेल्थ इज बीइंग हैम्पर्ड, आप यही चीज़ फिर टेस्ट के लिए वही गोलियाँ ही खानी पड़ती है, मेडिसिन खाना पड़ता है। सो इफ़ यू चेंज द हैबिट्स एवरीवन विल फॉलो, डेफिनेटली विल फॉलो। अगर आप करके दिखाओगे तो आपकी फैमिली फॉलो करेगी ही करेगी। एंड वंस दे स्टार्ट सीइंग द हेल्थ बेनिफिट्स, तो दैट विल मेक change in the daily routines you're having. And one more point I would like to just take last question, not question but a point which I always say, because अभी एक लेडी के थ्रू ये क्वेश्चन था इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे घर में तो सब ऐसे ही दिखते हैं। मतलब सपोज एक जन थोड़ा सा ओवरवेट है तो हमारे घर में सब ओवरवेट ही है, ऐसे मतलब हमेशा मुझे सुनने मिलता है हम लोग खाते पीते घर के दिखते हैं, ऐसे मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इवन इफ दे वांट टू चेंज, बट साइकोलॉजिकली दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं हम तो चेंज नहीं हो सकते बिकॉज हमारी फैमिली में ही इतना ओवरवेट होना चलता आ रहा है। बट इट इज़ नेवर लाइक दैट। जब और बोलते पुराने ज़माने में लोग ऐसे ऐसा उसमें सब भूल जाओ, अभी का ज़माना अलग है, ठीक है। जनरेशन हाँ वो थोड़ा बहुत हॉर्मोन्स सब रहता है, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा रहता है, बट नॉट नेसेसरीली कि आप भी उस अगर एक जन फैमिली में 100 kg तो आपने भी 100 kg ही बनना है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू change your habits, it's mostly dependent on that, ठीक है। if everyone is sitting in your family and you are also sitting, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होनी है। अगर खाना आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम ऐसा पर्टिकुलरली बनता था, इतना ही तेल चाहिए, इतनी ही रोटी,
होता है कि अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स को भी वही खाना, उनको बचपन से मम्मी ने वही खिलाया तो उनको भी वही अच्छा लगता है जो नानी दादी ने खिलाया, तो पापा या मम्मी को भी सेम खाना पसंद है, फिर हमें भी वही पसंद आता है क्योंकि हमने भी बचपन से वही खाना खाया हुआ है। सो व्हाट हैपन्स कि ये आदतें सुधरती नहीं है हमारी। एंड अच्छा हमारे सपोज घर में कल्चर होगा कि सैटरडे संडे तो मतलब पार्टी करना है या बाहर ही जाना है खाने पीने के लिए, और फास्ट फूड बनना ही बनना है, बच्चों की छुट्टी है तो सैटरडे बनाना ही बनाना है, ये हमने ना खुद ही रूल्स बना लिए। सो व्हाट हैपन्स कि आप सुधरते नहीं हो यहाँ पे, तो ये हमेशा बहुत लोगों के घर में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कि पहले ये ऑब्जर्व करो, देयर इज नथिंग लाइक कि हमारे घर में खानदान में यही सब सेम है, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू बी दैट पर्सन हु ब्रेक्स दैट चेन कि नो फ्रॉम हियर ऑन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि मेरी फैमिली में ये चीज़ें आगे ना बढ़े। सो दैट्स द थिंग। हाय रीना, या हाय, आई सॉरी आई फॉरगॉट टू से हाय, सो मेनी पीपल हैड जॉइंड। हाय प्रियांशा, हाय रीना, हाय अर्षा। I know most of them, yeah. Everyone, like most of them are my friends. Yeah. Thank you so much for wishing me birthday. Thank you. One question we had, role of discipline in workout. Yeah, discipline तो होना चाहिए because workout बोलते हैं ना बोरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए कि यार करना ही है बस, बिकॉज अचीव अगर करना है गोल यू हैव टू फोकस। एंड बोर हो रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया आज मूड खराब है और फिर मैं जिम नहीं जाऊंगी या फिर मैं वर्कआउट नहीं करूंगी, ये नहीं होना है। या किसी ने कुछ सुना दिया और तुरंत हम एक चॉकलेट खा लेते कि खुद के कंफर्ट के लिए, ठीक है। सो ये होता है। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, दीज आर ऑल द बोरिंग टर्म्स वी हैव टू लिव विथ। एंड यही चीज़ है जिसकी वजह से आप आपके गोल्स अचीव कर सकते हो। तो ये चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच, लाइक सो मेनी पीपल जॉइन, आई एम सो हैप्पी। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम लाइक लाइव इतना बड़बड़ करने के लिए, बट आई थॉट कि नो आई विल डेफिनेटली डू दिस एवरी वीक नाउ। तो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस here. So those who are beginners, those who have just started workout, those who are intermediate, or if you are a fitness professional also, please do join me, and then I will try to help you with all your queries, ठीक है। If you have any doubts, अगर आप किसी की भी क्लास वर्कआउट जाते हो, that's all fine. I'm here to help you, to just better your journey in this fitness and your health. So I'll be glad to help you with that. So you can just start putting your questions. And on the occasion of my birthday, like I said, it's a big leap of faith for me कि थोड़ा मैंने ये थोड़ा ज़्यादा पब्लिकली मैं आ रही हूँ अभी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट आई एम ऑफिशियली लॉन्चिंग माई ओन वेबसाइट नाउ। पहले नहीं था, अभी नाउ थोड़ा ट्राई की ओके थोड़ा प्रोफेशनल और होते। एंड सून द वेबसाइट विल बी लाइव एंड आई विल शेयर दिस विथ यू ऑल। प्लीज़ गो have a look how it is. So this way and just support me for that, and I hope I will also be able to provide you a good valuable content on the social media, and you'll definitely learn some great things, and I would learn a lot of things from you as well. Okay, yeah, Priyansha, question hair fall का ये पक्का मैं next live में लूँगी, so I'll definitely tell what can we do. हेयर फॉल सबका प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। सो इस पे हम लोग अलग से आराम से बात करेंगे, ये वाला नेक्स्ट लाइफ में। आई डेफिनेटली टेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस हेयर फॉल, आई थिंक द स्किन एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं फिटनेस की वजह से। काफ़ी चेंजेस आते हैं हमारे में, तो इनका क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सो विल डेफिनेटली टेक दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लाइफ. So thank you so much everyone for joining. Hi to everyone who just joined, and those who stayed here, thank you so much. I am blessed that you joined me, and it's my birthday, so thank you so much for wishing me today. Personally abhi maine nahi bola, but yeah, definitely I'll respond to everyone once I get free from the party today. So yeah, thank you so much for joining. Bye bye.